Every crystal lattice is made of an infinite number of unit Okay, Adi. cells, Sound is and clear? every lattice site is occupied by a constituent particle that may be an atom, an ion, or a molecule. Now let's examine what portion of each particle belongs to a particular unit cell. Consider three types of cubic unit cells. For the sake of simplicity, बहुत ध्यान से assume that the constituent particle is an atom. Let's start with a simple or primitive cubic lattice. एक बार बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इसमें बिल्कुल 3D बहुत क्लियरली समझ में आएगा, इसीलिए मैंने इसको आज निकाल के रखे। उसके बाद स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, ठीक है, नोट्स के अकॉर्डिंग। नोट्स तो पढ़ोगे ही, हर बार ये होता है कि इस तरह से 3D दिखाना। Ion or a molecule. Now let's examine what portion of each particle belongs to a particular unit cell. Consider three types of cubic unit cells. For the sake of simplicity, assume that the constituent particle is an atom. Let's start with a simple or primitive cubic lattice. A simple cubic lattice consists of 8 atoms at the 8 corners of a cube. In the open structure shown here, the distances between the atoms are greatly exaggerated. In reality, the atoms are packed much more closely together, as shown in the space-filling model here. The space-filling model shows that the atoms touch along the edges of the cell. By considering the portion of atoms inside the cell boundary, we can generate a unit cell of a simple cubic lattice. From this, it is evident that each atom at the corners contributes 1/8 of its original volume to each unit cell. There are 8 atoms at the 8 corners. एक बार बहुत ध्यान से देखना बेटा, ओनली 1/8 पार्ट ऑफ एवरी स्फीयर जो है फॉर्म्स अ क्यूब। 1/8 पार्ट, मैं दोबारा इसीलिए बार-बार इसीलिए शो कर रही हूँ कि इसको, ताकि थ्योरी जब पढ़ोगे तो क्लियर हो जाए, उसमें कोई डाउट नहीं हो। ओनली 1/8 पार्ट का ध्यान रखना स्टूडेंट। यस। From this, it is evident that each atom at the corners contributes 1/8 of its original volume to each unit cell. There are 8 atoms at the 8 corners. Thus, the number of atoms in each unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. A body-centered unit cell contains 8 corner atoms, just like in a simple cubic unit cell. However, there is one more atom at its body center. As a result, the atoms at the corners no longer touch along the edges of the cell in the space-filling model. The unit cell of a body-centered cubic cell is shown here. It is clear
that the 8 atoms at the corners contribute 1/8 of their actual volume each. In addition, one atom lies completely inside the cell. Therefore, the number of atoms at the corners per unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. There is one atom at the center of the cube. Thus, the total number of atoms in a body-centered cubic unit cell is 2. The face-centered cubic lattice consists of 8 corner atoms, just like in the simple and body-centered cubic lattice. However, it also contains 6 more atoms at the 6 faces of the cube cell. The atoms touch along the diagonals, and each touches 4 corner atoms. A unit cell of a face-centered cubic cell is shown here. It is clear that the atoms at the corners contribute 1/8 of their original volume each. In addition, there are 6 atoms at the 6 faces, which contribute half of their original volume each. The number of atoms at the corners per unit cell is equal to 8 corner atoms into 1/8 of an atom per unit cell, which is equal to 1. The number of atoms present at the faces per unit cell is equal to 6 atoms at the faces into half an atom per unit cell, which is equal to 3. Thus, the total number of atoms per face-centered cubic unit cell is 4. Yes. 1 minute बेटा. साथियों, क्या आप यूपीएससी 2020 इसको आदित्य इसको कैसे वीडियो में 3D एक 3D इफेक्ट के लिए बताया कि 3D इफेक्ट हो जाएगा, उसके बाद 1 by 1 वी विल डिस्कस एवरी फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड कैलकुलेशंस दोबारा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैंने कहा कि ये ऐसा समझो कि ये रिवीजन कर रहे हैं, इसको रिवाइज दोबारा नहीं करेंगे. ओनली 5 चैप्टर्स वी विल रिवाइज लेटर ऑन. ओके, सो कुणाल आई विल एक्सप्लेन इट लेटर. पहले फर्स्ट क्रिस्टल लैटिस से शुरू कर रही हूँ. क्या क्या है एवरी लाइन टू लाइन. What is the meaning of crystal lattice? Crystal lattice समझने से पहले unit cell को समझो बेटा. This is one unit cell. What is the meaning of one unit cell? That is, it is a cube. हमारे syllabus में सिर्फ cubic unit cell है. It is made by 8 constituent particles. 8 constituent particles से बना हुआ है एक unit cell. Participations बाद में discuss करेंगे. So this unit cell is 3D representation of a cube or any structure, 3D arrangement, and crystal lattice, a regular 3-dimensional arrangement of points in space, is called crystal lattice. There are only 14 possible 3-dimensional lattice, and these are called Bravais lattices. Important to note that only
14 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे आउट ऑफ हेक्सागोनल, कितने भी हो सकते हैं, और 14 कैसे बन रहे हैं वो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. Characteristics of crystal lattice. Each point in a lattice is called lattice point or lattice site. ये NCERT, ओके कल मैंने NCERT क्वेश्चन दिया था बेटा आप लोगों को, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर लास्ट 5 मिनट्स में डिस्कस करते हैं. Each point in a lattice is called lattice point or lattice site. Each point in a crystal lattice represented one constituent particle. These points are important for theory purpose because last वाले topic relates हो गए तो maybe इसी में से आ जाए. Each point in a crystal lattice represents one constituent particle, which may be an atom, a molecule, group of atoms, or an ion, whatever it is. Now lattice points are joined by a straight line. This straight line is an imaginary line. Why it is an imaginary line? Because molecules और atoms किसी भी line से join नहीं होते. ये जो line दिख रहे हैं बेटा, this is the imaginary lines to draw the structure. Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattices. Now unit cell. Unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which when repeated in different direction generates the entire lattice. So what is the difference between unit cell? बायो वालों के लिए बहुत अच्छे से कॉमनली सेल वर्ड होगा, ऑल्दो 10 तक आप लोगों ने भी बायो पर. सेल मींस सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट. हियर आल्सो यूनिट सेल मींस सिंगल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस, एंड when this single unit repeated in 3 dimension 3D in space, then it forms crystal lattice. So characteristics of unit cell, here again it is question hai in text mein, write the parameters of unit cell. A, B and C sides may or may not be mutually perpendicular. A, B and C. If they are perpendicular, then they form cubic lattice. Alpha, beta and gamma are angles. Thus, a unit cell is characterized by 6 parameters A, B, C, that is length, edge length, and alpha, beta and gamma, they are angles. Now, number of atoms in a unit cell. First, again, we will discuss primitive cubic unit cell. Primitive means, primitive देखो बेटा ध्यान से समझना जरा इसको, अगर डाउट है तो प्लीज बीच में ही पूछ लेना, मैं इसको मिनिमाइज करके एक्सप्लेन कर दूंगी. This is a simple cubic structure, okay, and it is made by 8 constituent particles. 8 constituent particles है. Shows constituents of each particle. जैसा कि डायग्राम में देखा तुमने वीडियो में देखा, only 1/8 part. इस एक क्यूब का only 1/8 part एक यूनिट सेल के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है. Because this unit cell is joined through side में बहुत सारे join होंगे, so it is only 1/8 part. So 1/8 into 8, क्यों 8 corners है, so total atoms कितने हैं 8, participant कितना है उसका participation, only 1/8 part. So if in Q or any type, every unit cell is made up of only one atom. Justify your answer that one unit cell is made up of one atom. इसको आप इस तरह से prove करोगे, because in 3D every cube is made by 8 atoms or 8 constituent particles. So but participation of one constituent particle is only 1/8 for each unit cell. So एक के लिए अगर पूरा 8 है, एक के लिए 1/8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/1 atom. This is a single structure. I think ये clear हो गया होगा. Now next primitive unit cell के बाद next one is body centered cubic unit cell. Outline तो सबके लिए होगा. अब अगर अपन घर की बात करें, घर का एक outline structure होगा, उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग चेंज कर देते हैं. कभी आप सेटिंग चेंज कर दोगे, फैन जैसे सेंटर में है, फैन की पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते हो. सो हेयर सेम वे, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, इट्स फॉर एप्लीकेबल फॉर एवरी यूनिट सेल, दैट इज 8 कॉर्नर्स इज देयर and every participation of each atom is only 1/8 part. So 8 corner into 1/8 is equals to 1 atom. Now second one, मैंने अभी फैन कहा, फैन एक रूम में अगर फैन है तो उसका पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि उस फैन का जो है हवा आपके दूसरे रूम में जा रही हो. सेम हेयर, सेंटर में ये देखो बेटा, सेंटर में
कर्सर पे ध्यान देना, सेंटर पे जो एटम है इट इज ओनली सराउंडेड बाय or present in a single unit cell or surrounded by 8 atoms or 8 constant particles. So its participation as a whole we consider. 1 at body center. So total per unit cell is equals to 2 atoms. Body center clear हो गया? Now next. Third is face-centered cubic unit cell. What is the meaning of face-centered? That is first मैंने कहा कि primitive वाला तो everyone में आएगा क्योंकि हमें outline तो सबके लिए बनाना है, उसके बाद setting change करनी है. There is a 8 corner and 8 corner is made by 8 constant particles. Participation of one particle is only 1/8 part. So 8 corner into 1/8 is equals to 1/8. Now यहाँ पे आप देख रहे हो, ये नीचे वाला डायग्राम देखना बेटा, यहाँ पे बहुत क्लियरली शो हो रहा है, जैसे अपने लूडो की डाइस होती है, it another atom or constant particle occupies 6 particles, 6 faces पे 6 particles हैं, different color से शो हो रहा है, so it is और clear हो जाएगा. Every phase, this is the first one phase, one in at center, one atom occupies second phase, third phase, fourth, fifth and sixth, आगे और पीछे. So this is a single unit cell and this unit cell is joined by another unit cell. So participation कितना होगा? जो common wall है, आप common wall से सोचो, common wall का एक रूम के लिए participation कितना होता है? Just half. Again same here कि एक जो है participation एक constant particle का एक unit cell के लिए only half part होगा. And faces कितने हैं? There is a 6 faces. So 6 that faces into half, that is 3 atoms. Total per, हाँ बोलो. मैम जो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल था, Yes, body center. एक मिनट, बॉडी पे आ जाते हैं, बॉडी सेंटर पे. हाँ बोलो. तो मैम उसका जो वॉल्यूम है वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट से तो ज्यादा बड़ा होगा ना? नहीं, सबका प्रिमिटिव है बेटा. हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल है, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, जो अभी 7 यूनिट सेल्स आएंगे, मतलब कौन कौन से यूनिट सेल्स पढ़ रहे हैं? बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर. एक तो प्रिमिटिव जो कि सबके लिए होगा, और वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम तो सेम होगा. एक क्यूब हम वॉल्यूम कैसे लेते हैं? एक क्यूब से लेंगे ना. ये एटम तो उनके बीच में है, रूम थोड़ी चेंज हो गया, फैन जो है उस रूम के अंदर ही तो है, वॉल्यूम थोड़ी चेंज किया है तुमने आदित्य. वॉल्यूम कहाँ से चेंज हुआ? क्या समझ में नहीं आया आदित्य बेटा? दोबारा बोलो. मैम मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, जब हम एटम गिन पा रहे हैं किसी भी मैटर के अंदर, तो हम ये उसका अरेंजमेंट भी पता है, तो फिर हम ये सेल क्यों निकाल रहे हैं? हम निकाल नहीं रहे बेटा, वो निकाला हुआ है, अब हम पढ़ रहे हैं, समझे? क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कैसे था. ये ऑलरेडी ये यूनिट सेल और स्ट्रक्चर एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखे हुए हैं. नाउ हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि किस किस टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं. ओके, यस मैम. हाँ. सो ये इस इतने टाइप के जितने भी अपने पास जितने भी मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो भी सॉलिड्स, बेसिकली सॉलिड्स, उन सबका सिर्फ इसी टाइप का अरेंजमेंट होगा. प्रिमिटिव सबके लिए होगा, प्रिमिटिव किसी के लिए भी अलग नहीं है, बिकॉज प्रिमिटिव इज द आउटलाइन स्केच. एंड देन उसके बाद अरेंजमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? इट मे बी बॉडी सेंटर्ड, मे बी फेस सेंटर्ड, और कुणाल कह रहा था मे बी एंड सेंटर. एंड सेंटर अभी डिस्कस करेंगे. सो बिसाइड प्रिमिटिव, मे बी बोला है, इफ बॉडी सेंटर प्रेजेंट है तो मे बी उसमें एंड सेंटर्ड भी वो हो सकते हैं, वो फेस सेंटर्ड भी हो सकते हैं, या ओनली बॉडी सेंटर्ड भी हो सकते हैं. ये डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट्स मेटल और सॉलिड्स अरेंज करते हैं. आदित्य क्लियर? मैम तो यानी कि जो हमने 11th क्लास में वो जो शेप्स और ज्योमेट्री पढ़ी थी, ये बस उसका रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हुई वो शेप्स ऑफ ज्योमेट्री जो पढ़ी थी, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आदित्य. शेप्स एंड ज्योमेट्रीज थी मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए. हमने कंपाउंड्स के लिए पढ़ा था बेटा. वहां पे तुमने SF6 लिया था, PCl5 लिया था, C2H2 लिया था, C2H4 लिया था. मतलब हमने सिर्फ बॉन्डिंग के बेसिस पे पढ़ी थी कि किसी भी कंपाउंड में अगर बॉन्डिंग है तो कैसी ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड्स किस तरह से अरेंज होंगे. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मेटल की बात कर रहे हैं. ये इट में भी
कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, डी ब्लॉक में भी इन्हीं टाइप के होंगे। कोई भी सॉलिड जोन में ऐसा अरेंजमेंट होगा। इट मे बी, उसने कहा ना मेटल आयंस, NaCl में जो अपन शेप्स पढ़ सकते हैं, NaCl का हमने उसमें नहीं पढ़ा था, NaCl का कहाँ था, पर यहाँ पे इनका अरेंजमेंट है कि सॉलिड किस एक, अगर बहुत सारा सॉलिड्स तुम ले रहे हो तो वो किस तरह से अरेंज है। और वो था बॉन्ड, एक सिंगल मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग थी। NaCl की बॉन्डिंग वहां पे नहीं थी, वहां पे नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग थी NaCl की, तो सीधे सीधे Na ने डोनेट किया था और Cl ने गेन कर लिया था। ओके, डिफरेंस समझ गए हो आदित्य? डिफरेंस क्लियर समझ लो। दिस इज फॉर 11th में जो तुमने ज्योमेट्रीज पढ़ी थी, ज्योमेट्रीज आर फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, and here is only solid is present, and this type of geometries are present in every, either it is ionic compound or any crystalline compound, metals or covalent network geometry, कोई सा भी हो सकता है। ओके, यस सर, आ गया। आ गया ना? ठीक है, चलो बॉडी सेंटर्ड हो गया है। नाउ फेस सेंटर डिस्कस कर रहे थे। सो ये मैं समझा रही थी, फेस सेंटर्ड में देखो बेटा, ये वाला डायग्राम और क्लियर था। दिस इज द हाफ 1 यूनिट सेल। इन 1 यूनिट सेल 1/8 पार्ट एक का शो कर रखा है, 1 2 3 4 दिस, इसके लिए। एंड सेम वे नीचे वाले जो 8 है वो भी 1/4 पार्ट कर रहे हैं, 1/8 पार्ट, सॉरी 1/4 नहीं 1/8 पार्ट, and half of the face centered, because one face centered constituent particle join 2 unit cells। तो एक के लिए पार्टिसिपेशन कितना होगा? जस्ट हाफ। ये यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कैलकुलेशंस पूरी रॉन्ग कर देते हो। टोटल पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 एटम्स। नाउ थर्ड वन जो है वो एंड सेंटर इसमें गिवन नहीं है। इन एंड सेंटर, मैं ये वाला अब मिनिमाइज कर रही हूँ, मैं दूसरा वाला स्क्रीन शेयर करूंगी। यस, अब ये मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ मैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स। ये सब कल डिस्कस कर चुके थे। यस, यहाँ पे बताना है अब मुझे। दिस इज एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, ये बिल्कुल मैंने जब शेयर करूंगी तब तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा पूरा। नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 सिंगल यूनिट सेल के लिए। नंबर ऑफ एजेस 12, नंबर ऑफ फेसेस 6। एज कौन सी होंगी? ये वाले एजेस की बात करेंगे, 6 फेसेस। नंबर ऑफ फेस कॉर्नर 6 हो जाएंगे। एंड एज सेंटर 12, बॉडी सेंटर 1, क्योंकि बॉडी सेंटर मींस सिर्फ बॉडी में आ जाएगा। एंड फेस डायगोनल 12। फेस डायगोनल का मतलब है कि इफ वी जॉइन G टू, आप किस से, आप D से ज्वाइन कर रहे हो, आप A को H से ज्वाइन कर रहे हो, मतलब फेस डायगोनल, फेस टू डायगोनली। कर्सर को ध्यान से देखना, A टू H ये फेस डायगोनल है, G टू H अगेन फेस डायगोनल, एंड बॉडी डायगोनल जो बॉडी को क्रॉस करेगा। एंड सेंटर, हियर इज द एंड सेंटर इन NCERT क्लियरली गिवन है। इधर देखो बेटा, एंड सेंटर में इफ ओनली ये वाले जो 2 शेडेड पार्ट्स हैं, इनके बीच में if any constant particles are present beside corners, shaded opposite side faces में if atoms present at corner plus any 2 opposite faces, here it is shaded line, shaded कर रखा है मैंने, then participation कितना हो जाएगा इसमें? 1/8 into कितना होगा बोलो? चलिए 1/8 तो इस कॉर्नर्स के लिए हुआ, एंड इसका पार्टिसिपेशन है हाफ, इसका पार्टिसिपेशन है हाफ, दैट इज ओनली 2 पे करेंगे, 2 into 1/2, that is 1. So in case of end center, number of atoms are 2. Yes, now ये वाला एक बार देखना बेटा, these are 7, 1 2 3 4 5 6 and 7 है क्यूबिक। These are the types of unit cell। ये अब मैं बुक में भी बता देती हूँ, चाहे तो बुक में से लर्न करना, चाहे इसमें से लर्न करना, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट में दे दिया है तुम लोगों को। Types of unit cell is cubic. Relation between A, B and C
that is edge length. A is equals to B is equals to 6, and this is a very common question. Compare the cubic. यहाँ yes, हमारा n फिर से समझा दीजिए, कौन सा वाला? n वाला, n वाला। एंड सेंटर. एंड सेंटर में देखो बेटा, ये एंड सेंटर जो है कॉर्नर्स का समझ में आ गया था आदित्य? नहीं मैम, कॉर्नर कॉर्नर नहीं आया? कॉर्नर में 18 into 8 वाला नहीं आया तुमको? मैम वो जो थे ना, जो पहले के 3 कर लिए थे हमने, हाँ और प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये तो आगे हाँ समझ में। हाँ, ये इसी में ही तो बोल रही हूँ कि जो 18 into 8 is equals to 1 पार्ट है, वो समझ में आ गया। तो वो इसमें भी वही है, इसमें भी तुम देख रहे हो कि ये कॉर्नर्स पे हैं बेटा, 8 कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स पे 1 कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, पार्टिसिपेशन 1/8 पार्ट है, तो 1/8 into 8 is equals to 1. Up to this clear, Aditya? Okay. Now, constant particles are present only any two faces. फेस सेंटर में क्या था? ऑल द 6 फेसेस पे कवर हो रहा था। यहाँ पे क्या है? ओनली इन 2 फेसेस, ईदर एनी 2 अपोजिट फेसेस। ये 2 शेडेड कर रखे हैं मैंने इसमें बीच में मान लो सपोज एक एक एटम है, तो क्या होगा? इनका पार्टिसिपेशन कितना होगा? जैसे फेस सेंटर के लिए 6 फेसेस थे, 6 into 1/2 किया था, यहाँ पे तुम क्या करोगे? 2 into 1/2 आदित्य। So 2 into 1/2 is equals to 1. Total number of atoms for end center कितने हुए? 1 plus 1, 1 for corners and 1 for end center. So 1 plus 1 is equals to 2. So ये 2 आ जाएगा। बॉडी सेंटर में भी 2। हाँ, ये जो सेल है ये इमेजिनरी मतलब वो है एरिया, और इसके अंदर कितना एटम्स आ रहे हैं ये एक्चुअल चीज है। ये जो है ये इमेजिनरी एरिया नहीं है। कांस्टेंट पार्टिकल्स को, जैसे तुम अगर स्टार्स देख रहे हो, अपन कंसीडर कर लेते हैं कि ये शेप बन रही है, ये शेप बन रही है। सेम हियर, कांस्टेंट पार्टिकल्स इन एनी सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे अरेंज रेगुलर 3D अरेंजमेंट है, जिसको कि हम क्रिस्टल लैटिस बोल रहे हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनकी शेप्स डिसाइड की हैं कि इधर अगर मान लो क्यूब बन रहा है तो वो क्यूबिक हो जाएगा, अगर हेक्सागोनल बन रहा है तो हेक्सागोनल हो जाएगा। ये फर्स्ट सिर्फ प्रिमिटिव शेप्स हैं। यस रौनक, अगेन मैं बोल रही हूँ, क्लियरली सुनना। ये शेप क्या है? ये बिल्कुल क्लियरली बन रहे हैं। कैसे क्लियरली बन रहे हैं? कि हमने देख लिया कि ये 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एंड विद द इमेजिनरी लाइन ईदर दे आर, ये इतने टाइप की शेप्स हो सकती हैं। 1 minute. Yeah. Maybe they are cubic, maybe tetrahedral, orthorhombic, hexagonal, rhombohedral, monocyclic और monoclinic और tricyclic और triclinic। ये 7 जो हैं, ऐसा नहीं होता कि मैं कहूँ कि तुमने जैसे मैथमेटिक्स में हम कैसे भी ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, हम अपने हाथ से बिठा के कैसे भी ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, बट क्रिस्टल्स 11 से बोल रही हूँ, solids or any atoms or constant particle, they arrange themselves. ये उनकी मर्जी है, उन्होंने कैसे अरेंज किए। On the basis of this, they draw only 7 type of geometry. कौन कौन सी geometries हैं? First cubic है, maybe tetrahedral geometry हो सकते हैं, maybe orthorhombic हो सकता है, hexagonal हो सकता है, rhombohedral, monocyclic and tricyclic. Okay, रौनक, up to this clear? Now ये yes, नमन। मैम इसमें शॉर्ट तरीका है क्या इसका पूरा याद करने का, या ऐसे याद करना है? ऐसे याद करना पड़ेगा बेटा आपको ये जो, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट ये कर दिया है कि आपको ये याद रखने है कि मान लो इसमें देखो, तुम ऐसे कर सकते हो शॉर्ट में कि क्यूबिक एंड रोम्बोहिड्रल, इन दोनों में A is equals to B is equals to ABC इक्वल है। ओके, बाकी इसको तुम अपने आप एक समराइज कर सकते हो। इन ऑर्थोरोम्बिक एंड इन मोनोसाइक्लिक, ये दोनों में तीनों इक्वल नहीं है, एंड टेट्राहेड्रल एंड हेक्सागोनल में A is equals to B है एंड C इक्वल नहीं है। अब सेम वे 90 डिग्री अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री किस किस में है? क्यूबिक में है, टेट्राहेड्रल में है, ऑर्थोरोम्बिक में है, रोम्बोहेड्रल में है। तुम इन 4, ओके रोम्बोहेड्रल में नहीं है, इन 3 में है। तुम इन 3 को तुम अरेंज कर सकते हो कि इन 3 में जो है 90 डिग्री एंगल पे है, जिसमें अल्फा बीटा इज इक्वल, यस मैम मेरे को ये समझ में आ गया कि एटम्स खुद को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो करेंगे अरेंज,
तो मैम कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्हें स्पेसिफिक शेप दे देते हैं? एक तो क्या साइज बेटा? होगा, एक इनका क्या बॉन्ड बोल? होगा। एक मिनट, तुम्हारी आवाज आज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा बोलो। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अभी बताया ना कि एटम्स खुद को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में सेट कर लेते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। हाँ, दे themselves अरेंज, अपन नहीं कर रहे हैं, सॉलिड अपने आप अरेंज है। जैसे मेटल का अरेंजमेंट है, तुम कॉपर का अरेंजमेंट अलग होगा, NaCl का अरेंजमेंट, मतलब उन्होंने अपने आप अपने खुद को अरेंज कर रखा है। हाँ बोलो, आगे बोलो। मैम मेरा ये क्वेश्चन है, कौन सी चीजें होती है जो इन्हें, मतलब जैसे कॉपर का अरेंजमेंट अलग है, आयरन का अलग होगा, हम्म तो मैम क्या इट चीज? इट डिपेंड्स ऑन द size of the constituent particles. जैसे one Na ion is surrounded by 6 chloride ions. In the same way, one chloride ion is surrounded by 6 Na plus ion. Rock salt structure बोलते हैं। डिपेंड कर रहा है कि उनका साइज कैसा है। सपोज कि सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ क्यूबिक, इतने बड़े पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं कि वो सिर्फ बाहर बाहर से अपने आप को अरेंज कर पा रहे हैं, उनके बीच में इतनी जगह ही नहीं है, इतना वॉइड ही नहीं है कि उस सेंटर में कोई एटम आ पाए। क्लियर आदित्य? इफ दीज एटम्स कांस्टेंट पार्टिकल्स, मतलब तुम्हें आउटलाइन तो बनाना ही है। अब उस आउटलाइन के अंदर कितनी स्पेस है, मतलब तुम्हारा किसी का घर है, उस घर के अंदर कितनी स्पेस है, हम उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हैं कि हाँ ठीक है, हम इतना बड़ा सोफा ले लेंगे, इतनी जगह, इतनी स्पेस है। हम तो सेम हियर कि डिपेंड्स ऑन की आउटलाइन स्केच तो सेम है। अब उस आउटलाइन, मतलब 8 एटम्स मिलके ये 7 टाइप के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, these 7 types, and in these 7 types arrangement of atoms are वो जो 3 पढ़े थे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड क्यूबिक एंड सेंटर्ड। मेरे को लगता है कि ये क्लियर हुआ, यहाँ तक पहले क्लियर कर लो कि अरेंजमेंट ज्योमेट्रीज आर ऑन द बेसिस ऑफ 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स आर ऑफ ओनली 7 टाइप। मैथ्स में आप लोग बहुत सारे पढ़ते हो, उसमें से सिर्फ सॉलिड्स जो है ये 7 टाइप से अरेंज हो सकते हैं। हमने सिर्फ ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, ये प्रिमिटिव, इनका ये अरेंजमेंट है। आई थिंक इट इज क्लियर। यस मैम। ओके, नाउ अगर एटम का साइज छोटा है, देन दे मे फॉर्म body centered or face centered or end centered. It depends only on the another constant particles कि another constant particles जो है उस constant particles का साइज कितना है, वो उस void के अंदर आ पा रहा है नहीं। अभी जब मैंने स्ट्रक्चर शो किया था दूसरा वाला, इसमें देखो ना बेटा, और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, इस कॉर्नर के बाद बीच में इतनी स्पेस है आदित्य, इतनी स्पेस है कि ये यहाँ पे ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। इस पूरे स्पेस के अंदर अगर इसकी हम सेक्शन कटिंग कर रहे हैं, तो तुम सेक्शन कटिंग के अकॉर्डिंग देख पा रहे हो कि दे आर फिट हियर, फिट हो पा रहे हैं। मान लो अगर इतनी जगह नहीं है, बॉडी सेंटर्ड के अकॉर्डिंग था, तो बॉडी ये यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड के अकॉर्डिंग ओनली 1 एटम फिक्स हो पा रहा है, बाकी और इतनी वॉइड्स के बाद इतनी स्पेस ही नहीं बच रही है कि वो वहां पे आ पाए। क्लियर? यस मैम। यस। ओके, और किसने पूछा था मुझसे? आदित्य, इसमें यहाँ पे एक बार और देखो, 8 corners into 1/8 is equals to 1 atom. It is for my end center calculation समझा रही हूँ। Only 2 faces, only 2 opposite faces occupy atom. So it is 2 at faces into 1/2 because half participation है is equals to 1. So total per unit cell is equals to 2. And total का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, body centered, face centered सब में। अगर आप ये ध्यान नहीं रख पाओगे तो then हर बार wrong हो जाएगा। नाउ मैं एक बार स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग। यस, नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। वी डिस्कस